Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Jaya Radha Gopal Krishna, Radha Gopal Krishna Radhe, Jaya Radha Gopal Krishna, Radha Gopal Krishna Radhe, Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radhe, Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radhe, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Varadeva, Jaya Subhadra, Jaya Varadeva, Jaya Subhadra, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavanam, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavanam, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva, Panchatattva, Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva, Panchatattva, Jaya Panchatattva, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya 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 Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jai Shubhara Paramahansa Pragati Rashtratasat Sri Srimati Srivaktan Srimaraj Prabhupada, Jai Shubhara Paramahansa Pragati Rashtratasat Sri Srimati Bhakti Siddhanta Sri Srimaraj Prabhupada, Nama Srishla Thakur Vijay, Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktarum Vijay, Shri Shri Radha Krishna Gopa Govinda Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan, Shri Shri Radha Gopal Krishna Bhavan, Ganga Mai Vijay, Yamuna Mai Vijay, Bhakti Devi Vijay, Tulsi Devi Vijay, Anantapudi Vaishnava Vijay, Shri Ram Sankirtan Vijay, Radha Asana Bhagavatam, Vishnu Vartan Guru Vijay, Gaur Praman Vijay, all go to Darshan Vijay, all go to Darshan Vijay, all go to Darshan Vijay, all go to Guru and Gauranga, all go to Prabhupada. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-salakaya Chakshurmritam Jenam Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya-bhishtam Sthapitam Jena Bhutale Shanrupa Padamahyam Dadami Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Padakamalam Shri Gurun Vaishnavansya Shri Rupam Sagrajatam Sahavana Raghunatha-nitam Tam Sajivam Sadekam Savadhutam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahavana Lalita Shri Visakha-nirthansya He Krishna Karunasmi Dino Jagaspate Kesava Bhigakanta Radhananda Namostute Tattadansa Murangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhani Shri Devi Pranamami Hari
वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। जष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सभी को आज के कृष्ण बलराम का जो लीला है उसके बारे में कुछ बोलने के लिए प्रयास करेगा, क्योंकि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। जो भी टूटा फूटा बोलेगा उसको थोड़ा आप लोग सारग्राही होके ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि ये मेरा पहला हिंदी का क्लास है। ऐसा ही तो हिंदी बोलना अलग है और हिंदी में कथा करना अलग है। तो हमारा प्रेसिडेंट बोले हैं आज जो भी क्लास है हिंदी में लेने के लिए, तो मैं कोशिश करेगा। तो आज मैं बोलने वाला हूँ भगवान कृष्ण और बलराम का जो फर्स्ट टाइम है, तो धेनुकासुर का जो वध है उसके बारे में वो कुछ बताएगा। तो जैसे ही भगवान और कृष्ण बलराम जब छोटे थे तब उन्होंने छोटा गाय जो बछड़ा था वो चराते थे। जब उनका उम्र मीन्स उनका जो एज पोगन बोलते हैं उसके हिसाब से जो थोड़ा बड़े हो गए, तो नंद बाबा और जितने गोपा थे और तो उन्होंने सोचे अभी कृष्ण और बलराम को अभी बछड़ा चराने के छोड़ के उनको गाय चराने को सौंप देना चाहिए। तो सब लोग को पता होगा गोपाष्टमी क्या है। गोपाष्टमी एक है कि जिस दिन भगवान कृष्ण और बलराम गाय को चराने का प्रारंभ किए, तो उसी दिन क्या किए थे सब लोग नंद महाराज और उनके जितने गोप थे उनके गाय को अच्छा से स्नान करा के उनको अच्छा सा माला पहना के उनको अच्छा सा क्या है जितना सारा ऑर्नामेंट क्या सजा के ऑर्नामेंट जो भी सब आभूषण दे के अच्छा से उनको सजाए और गो माता को पूजा किए। फिर कृष्ण बलराम गाय को लेकर चराने के लिए प्रारंभ किए उसी दिन से। तो भगवान और उनके साथ जो सखा थे तो उन्होंने उनके साथ गाय चराने के लिए निकल पड़े। तो एक्चुअली हम लोग देखते हैं गांव में जब हम लोग गाय चराने के लिए जाते हैं तभी गाय के पीछे हम लोग चलते हैं, है ना। क्यों? गाय को हम लोग जो है पीछे से रोक करके लेके जाते हैं, थोड़ा लेते हैं क्योंकि वो कहीं चला ना जाए। मगर वृंदावन में इसका विपरीत भी है। भगवान कृष्ण और ग्वाल बाल है वो आगे चलते हैं और उनके पीछे गाय आते हैं, क्योंकि उतना प्रेम भगवान जो गाय हैं उतना प्रेम भगवान को करते हैं, तो उनको छोड़ के वो कहीं जाना नहीं चाहते। तो भगवान जहाँ जिस रास्ता पे जाते हैं तो उनको जितना सारा गाय है उनको उनका पीछे भी चलते हैं। तो भगवान चलते चलते वन में चले गए। तब भगवान
जब वन में गए तो वन क्या है, वो वृंदावन है। तो वृंदावन का जो अधीश्वरी है कौन है, राधा रानी है। मगर वृंदावन को जो सजाता है वो है वृंदा देवी, तो उसका इंचार्ज है वृंदा देवी, ठीक है ना। तो उन्होंने बहुत अच्छा सा जो वावास पुष्प है, जो घास है और इतना वृक्ष है और कई सारा पक्षियाँ, तो जैसे कि बहुत सारे कुंड हैं, वो कुंड में सब कमल का फूल खिला है। तो जितने सारे सुगंधित फूल है वो सब वृंदावन में सजा के रखें। क्यों, भगवान लीला करेंगे तो भगवान इस हम लोग ये जागतिक दुनिया में है, ये भौतिक संसार में, भगवान तो ये भौतिक संसार से परे हैं। तो भगवान के लिए वो जो सब चाहिए वृंदा देवी वृंदावन में सजा के रखें। मयूर हो गए, जितने सारे अच्छे अच्छे पक्षी और फूल भी जो है और पौधा है सब लगा के रखें। तब कृष्ण बलराम चलते हैं, चलते जा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण सोचे थोड़ा हम लोग बलराम का कुछ गुणगान करें। तो देखे जो अच्छा एक बड़ा बड़ा झाड़ है, उसका जो डाल का जो टहनिया है वो क्या कर रहा है, हवा से नीचे झुक रहा है। तो कृष्ण बोलते हैं, भैया देखो ये जो डाल का जो टहनिया है ना, वो आपको प्रणाम कर रहे हैं, वो आपको देख के आपका स्वागत कर रहे हैं। तो बलराम थोड़ा खुश हो गए। तो फिर दूसरा क्या है, जितना सा भौरे थे वो सब गुणगान करते हैं, ऐसा होते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं, भैया ये जो आपका ये देखने भौरे है ना, ये आपका सादर प्रणाम करता है और वो आपका गुणगान कर रहा है। ऐसा नहीं है वो खाली आपके चारों तरफ आके आवाज करे, ऐसा नहीं है। तो दूसरा क्या है, जब हवा आता है ना, इतना सारा सुगंधित फूल रहता है और जो कमल का फूल रहता है, और कुंड से क्या होता है, जब हवा आता है उसका से जो बूंद का छिटक जो है वो लेके आता है हवा में। तो उधर नेचुरल का जो इसका वातावरण उधर हो जाता है, उधर कोई एयर कंडीशन एसी का जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों, भगवान का सेवा में हर कोई लगा रहते हैं। तो भगवान का सेवा में सब वो लोग हैं। तो भगवान गाय चराते चराते थोड़ा थक गए, बलराम जी थक गए। ऐसा तो बलराम थकने वाले नहीं है, क्यों, नाम है बलराम, बल के स्रोत हैं, वो शंकरषण है खुद। और क्या है, वो शेषनाग है जो सारे पृथ्वी को उठा के रख सकते, वो कैसे थक जाएंगे, उनको थक नहीं। मगर क्या है, थोड़ा जो गोप उनके साथ हैं, उनको कुछ सेवा देने के लिए वो ऐसा सोचते हैं। तो बलराम थक जाते हैं। तो एक गोपा बोलता है, दाऊ जी आप आ जाइए, मेरा गोद में आप लेट जाइए। तो आके बलराम जी क्या करते हैं, उनका गोद में लेट जाते हैं। जब लेट गए तो दूसरा एक गोपा आता है, कुछ एक बड़ा पत्ता है, इतना सारा से एक पत्ता ला के बलराम को चामर डुलाता है। तो कृष्ण देखते हैं ये लोग सेवा कर रहे हैं, मैं भी थोड़ा बलराम जी का सेवा करने का। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान बलराम का पैर दबाने लगे। तो बलराम जी जब थक गए, उठ गए, फिर कृष्ण बोले मैं थोड़ा लेट जाएगा। तो कृष्ण जब लेटने के लिए गए, तब सब गोपों ने क्या किया, अच्छा सा सुगंधित फूल लेके आए, घास लेके आए, लाके भगवान के लिए तकिया बना दिया सोने के लिए। तो भगवान बोलते हैं नहीं, मैं इसमें नहीं सोएगा, मैं तो मेरा भक्त जो मित्र है उनका गोद में ही सोएगा। तो फिर भगवान के जाके बोले ठीक है आप आ जाओ। फिर किसी गोद वाले के गोद के ऊपर सो गए। तो फिर दूसरा गोप सब आए, उनको कोई चमड़ा डुलाया। फिर बलराम जी जाके भगवान कृष्ण का क्या किए, सेवा किए। तो ऐसा करते करते देखो मीन्स
दोपहर का समय हो गया। तो ये गोप लोग क्या सोचे, हम लोग अभी इनके लिए कुछ भोजन तो तैयार करना पड़ेगा। तो ऐसा सीधा शायद पूछेंगे तो भगवान आपको भूख लग रहा, आप कुछ खा लीजिए करके, वो तो खाएंगे नहीं। तो उनमें से दो थे, एक सुदामा और एक स्तोत कृष्ण, ठीक है। उन दोनों ने बोले, कृष्णा कृष्णा आपको पता है इधर एक ताल वन है, उसका जो ताल है, उसका फ्रूट है, फल है, इतना स्वादिष्ट है, इतना मधुर है, पूछो मत। और हम लोग उसको जाके आस्वादन कर सकते हैं। बड़ा बोलते क्यों नहीं, हम लोग क्यों नहीं खा सकते हैं। फिर बोलते हैं क्या उधर एक प्रॉब्लम है, क्या है, नहीं उधर का जो ताल बन है उसका कोई एक रक्षक है, जो कि बोलते हैं उसको कोई देखभाल करता है। वो एक बड़ा असुर है, वो असुर किसी को उधर से ताल देता नहीं। अभी तक ब्रज में, वृंदावन में कोई भी अभी तक ताल चखा नहीं है, वो कैसा है। और वो आदमी का तो छोड़ो, कोई पशु भी, जानवर भी उसके अंदर नहीं जा सकता है। बोले ऐसा है, चलो अभी चलते हैं। तो सब बार और कृष्ण बलराम चले आगे। तो भगवान कृष्ण को सूझ गया, अभी जितना सारा वध किया है अभी तक वृंदावन में, मैं ही वध किया है, अभी बलराम को चांस देना चाहिए। तो भगवान तो ये सोच लिए। तो सारे सखा लोग चले वन में गए, ताल वन के पास पहुंच गए। देखिए विशाल विशाल बहुत बड़ा बड़ा ताल वृक्ष है, और वो सब पूरा पक्के टकमक पूरा है। इनको देख उनका जो बाल है, उनका क्या है, जो क्या मुख से पानी आ रहा है। तो मगर खाएं तो कैसे खाएं, इतना ऊपर है, विशाल का है, बड़ा बहुत बड़ा ताल का वृक्ष है, तो कैसे खाएं। तो भगवान बलराम क्या किए, दोनों हाथ में रख के ऐसा जोर से हिलाने लगे। जब हिलाए सारे ताल गिरने लगा, बहुत वृक्ष भी बड़ा है, और जब गिरा उसका जो शब्द है वो धेनुकासुर तक पहुंच गया। वो सोचा कुछ गड़बड़ है, मेरा क्या बगीचा में कुछ गड़बड़ है, तो मेरे को जाके देखना पड़ेगा। तो जब आके देखा, बलराम आगे खड़े हैं और जितना ग्वाल है वो सब फ्रूट्स को पकड़ के खेल रहे हैं। आवाज शाम को मिल गई। तो इसको देख के जब देखे धेनुकासुर आया, उसका शरीर भी वहां का बहुत बड़ा शरीर है उसका, और वो गधा ही है। जो धेनुकासुर है उसका शरीर जो है गधा का शरीर है। तो उन्होंने देखा, सब ग्वाल किया किए पीछे चलिए, कृष्ण भी पीछे चलिए, क्योंकि भगवान ने सोच के रखे जो भी बंद करना है इसको ही करने का है। तो ये जब आया, इसको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि धेनुकासुर है ना, वो सोचता ये मेरा ही बगीचा है, इसका जितना सारा फ्रूट्स है मेरा ही है। तो वो खाली वो खाता था और दूसरा किसका, कंस के पास भेजता था। कंस क्या, उसको मादक के हिसाब से वो ग्रहण करता था। तो वो क्या किया, उसका शरीर बहुत है, तो वो गुस्सा में पूरा बहुत गुस्सा में, तो उसने क्या किया, उसका पेट को खरच के आया और बहुत स्पीड से आया, बहुत जोर से आके भगवान बलराम को बहुत आके भगवान के पास जस्ट टर्न ले लिया। क्यों, गधा तो सीधा लात नहीं मार सकता है ना, उसको घूम के पीछे का पैर में लात मारने का। तो आके फट से घूम के बहुत जोर से भगवान बलराम के ऊपर लात मारा। तो भगवान जस्ट ऐसा ही हो गए, और गिरे नहीं, उनको कुछ चोट नहीं आया। तो वो देख के उसको और गुस्सा आ गया, क्यों, भगवान तो बलराम है, बल का स्रोत है, उनको क्या होने वाला, जो ये सारा पृथ्वी को उनका फेना में ये अशेष नाग रखे, उनको ये क्या होने वाला है। तो उसको और गुस्सा आ गया। तो ये जब कांड चल रहा था, तो
और जो ये धनुकासुर है उसका जो मित्र लोग थे उनको आवाज आया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हम लोग को जाना चाहिए उधर। तो वो लोग भाग के आए, आके देखे तो धनुकासुर और बलराम का युद्ध चल रहा है। तो वो लोग उधर खड़े रहे, कुछ किए नहीं। तो धनुकासुर क्या किया, और जोर से प्रहार करने के लिए और जोर से भाग के आया। जब भाग के आया बलराम जी के पास, जस्ट टर्न ले रहा है, मुड़ रहा है, उसी टाइम भगवान के उसका पैर को पकड़ लिए। जब पैर पकड़ लिए उसको इतना घुमाए इतना घुमाए, जैसे हम लोग बच्चा लोग क्या किए पत्थर को रख के एक रस्सी में घुमाते ना, ऐसा ही घुमाते उसका जान निकल गया। तो क्या किए, वो घुमाते उसको सीधा बांध के ऊपर फेंक दिए, ताल वृक्ष के ऊपर। जो ताल वृक्ष के ऊपर फेंक दिए, उधर से जितना सारा ताल पका हुआ था वो सब गिर गया। तो ये लोग जो देखे, क्या उनका जो मित्र लोग तो देखे, बोले अभी हमारा सरदार को ये तो ऊपर पहुंचा दिया, हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये लोग क्या किए, भगवान बलराम के ऊपर फिर आक्रमण किए। जब आक्रमण किए, भगवान कृष्ण देखे ये तो अकेला था, अभी तो बहुत सारे हैं। तो भगवान क्या किया, आधा आधा कर लिए। कृष्ण आधा को क्या आधा असुर को पकड़ लिए और बलराम आधा असुर को पकड़ लिए। तो क्या किए, सबको घुमा के दो हाथ में घुमा के ये पेड़ के ऊपर वो पेड़ के ऊपर फेंक के उनको बंद कर दिए। और इतना सारा विशाल का शरीर था, कोई झाड़ भी टूट जाता था। तो इस सब से धनुकासुर का तो बंद हो गया और इन लोगों को तो सारा फल मिल गया। तो ये लोग क्या किए, चलो हम लोग कुछ इसका आस्वादन भी करेंगे, और व्रत में तो इसका कोई अभी तक इसका कोई टेस्ट और मजा तो कोई नहीं पाए, तो उनके लिए भी हम लोग कुछ लेके चलेंगे। तो उन्होंने यही सोच के लेके आए। और भगवान जब युद्ध कर रहे थे तब उनके शरीर में जो धूल और मट्टी है, क्योंकि इतना सारा जो युद्ध चल रहा था, तो धूल मट्टी ऐसे ही आ जाएगा, तो उनके सब पड़ा था। तो उनका शरीर वो बहुत मीन्स जो था उससे कई गुना और भी अच्छा लगता था। तो इन्होंने जब ब्रज में गए तब गोपी हैं उनको देखते ही रहेगी, भगवान का क्या दृश्य है। तो फिर जाके भगवान उनका घर में पहुंचे तब रोहिणी माता आए और यशोदा माता आके कृष्ण बलराम को लिए, लेने के बाद उनको नहला के भोजन कराया। अभी हमको ये जानना है इधर जो धेनुकासुर है, धेनुकासुर जो है आचार्य बोध का उसका कुछ महत्व दिया है। जो धेनुकासुर को क्या है, जो तालबन जो है क्या है, बोलते हैं तालबन जो है हमारे किसी के जो भक्त हैं उसका हृदय का समान, जो तालबन है ना बोलते हैं वो हमारा भक्तों का हृदय का जैसा है। और धेनुकासुर जो है वो हमारे हृदय में जो अनर्थ है, वो अनर्थ क्या है, जब हम खाली अपने बारे में सोचते हैं तो वो अनर्थ उसके अंदर है। क्यों वो खाली सोचता है ये जो तालबन है वो मेरा ही है, इसका जो भी फ्रूट है मेरा है, इसका इंसर्ट में ही है। तो अनेक अनर्थ जो और जिसका सब दूसरे दोस्त थे, मित्र थे, वो क्या है बोलते हैं दूसरा अनर्थ। हमारे अंदर एक ही अनर्थ नहीं है ना, एक जब एक अनर्थ आ जाता है तो सारे मित्र और अनर्थ भी हमारे हृदय में आ जाते हैं। तो इसको निकालने के लिए, ये जो हमारा अनर्थ है उसको निकालने के लिए हमको कोई गुरु का जरूरत होता है। और वो गुरु कौन है, हमारे आचार्य लोग हैं और हमारे जो दीक्षित गुरु हैं, जो भी है हमारा परंपरा वो गुरु है। और जो बलराम जी हैं वो गुरु तत्व है। तो हमको ऐसा बलराम जी चाहिए जो हमारे अंदर जितने सारे कर्म से जो अनर्थ है
उसको दूर करे और हमको गुरु के साथ जोड़े तो और कुछ ज्ञान ले, क्योंकि ऐसा अनर्थ जाने वाला नहीं है ना, हमारा जो अनर्थ ऐसा जाएगा नहीं, तो उसके लिए कोई गुरु होना चाहिए, हमको बोलना चाहिए हाँ ये आप अनर्थ कर रहे हैं, तो हमको वो अनर्थ से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। जब हम लोग सरेंडर नहीं करेगा, गुरु बोलते ही रहेंगे, फिर भी हम लोग सुधरेगा नहीं। फिर बलराम जैसा कोई हमको आना चाहिए, हमका जो अंदर है वो जो कर्म से जो अनर्थ है उसको मुक्त करने के लिए। और धेनुकासुर जो है ना, क्या है, गधा है ना, गधा तो है, गधा क्या करता है, कंधे में कुछ लटके, बस उसका काम है, गधा का काम है, वो कुछ सामान लोड करेगा, उसका धोबी उसका काम करने का। हम लोग भी ऐसा ही गधा है। क्यों? आपको नहीं, मैं ही ऐसा गधा है, क्योंकि हमारा जो हमारा पाप कृति इतना है और हम लोग पैसा कमाने के चक्कर में इतना रहते हैं, हमेशा बोझ लेके चलते ही रहते हैं, कभी भगवान को मुड़ के देखते नहीं और हमारे गुरु का है उसके पास हम जाते नहीं। जब भी जाएंगे तभी हम लोग इससे मुक्त होंगे। तो आज रूप गोस्वामी का तिरुभाव तिथि है, तो भगवान चलिए रूप गोस्वामी जो है षड गोस्वामी से सनातन के भाई हैं, जो रूप गोस्वामी है वो हमारे आचार्य जितने षड गोस्वामी हैं उनसे पढ़े हैं, वो सबसे इन्होंने हमको जितना सारा पुस्तक हुआ उन्होंने रचित करके गए हैं, जिसको पढ़ के हम उनका कुछ उपदेश हम लोग ग्रहण करेंगे तो हमारे जीवन में हम लोग सुधर सकते हैं और इसी जन्म में हम लोग भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। तो ऐसे गोस्वामी जो है ना, गोस्वामी किसको बोला जाता है? गोस्वामी जो उनका इंद्रियों को पूरा बस में करते हैं, उनको गोस्वामी बोलते हैं। तो हम लोग जो है, हम लोग को इंद्रिय कंट्रोल करता है, हम लोग इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो देखिए हम लोग जाते हैं, कोई दुकान के चल के जाते हैं, कोई रसगुल्ला देखेगा तो बहुत अच्छा है, चलो एक रसगुल्ला खाए, फिर आगे जाएंगे तो देखेंगे हाँ इधर गुपचुप है तो इधर से भी हम लोग कुछ खा लें, फिर आगे जाएंगे आइसक्रीम में कुछ खा लेते हैं, क्योंकि हमारा इंद्रिय कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में नहीं। मगर जो गोस्वामी लोग हैं उनका जो इंद्रिय है, षड इंद्रिय है, उनका कंट्रोल में है। ठीक है, वो बताएगा। उपदेशामृत में कुछ है तो उसको हम लोग सुनेंगे, शिला प्रभुपाद महाराज के द्वारा वर्णित है, तो हम लोग उसका कुछ आस्वादन करेंगे। श्री गोपाल कहते हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्री रूप गोस्वामी के अध्यक्षता में संचालित होता है। गौड़ीय वैष्णव या बंगाली वैष्णव अधिकांशतः श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, जिनमें से वृंदावन के षड गोस्वामी उनके प्रत्यक्ष शिष्य हैं। अतः श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है। ये बोलते हैं जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है उसमें रूप गोस्वामी अध्यक्षता का संचालन करते हैं, तो मेन अध्यक्ष जो है हमारा रूप गोस्वामी है। और गौड़ीय वैष्णव भी होते बंगाल में, और भी बहुत सारे गौड़ीय वैष्णव हैं। इसलिए नरोत्तम दास ये गाते हैं, रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति कभी हम बुझे जुगाला फिरेती। जब मैं गोस्वामी द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा, तभी मैं राधा तथा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को
समझने में समर्थ हो सकूंगा। तो हम लोग जब गोस्वामी लोगों के साहित्य पढ़ेंगे तभी हमारे हृदय में जो लाल शरीर क्या बोलते हैं, जो लालसा है वो सब क्या होगा, दूर होगा, और हम लोग क्या होगा, भगवान का प्रेम को समझने के लिए समर्थ हो जाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव मानव समाज से को कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए हुआ। भगवान कृष्ण के समस्त कार्यकलापों में सबसे उत्कृष्ट है गोपियों के साथ उनके माधुर्य प्रेम का लीला। भगवान बोलते हैं जितने सारे लीला है, सबसे जो माधुर्य लीला है वो गोपियों के साथ उन्होंने क्या किए थे, लीला किए थे, प्रेम का लीला किए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों में श्रेष्ठतम श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए। जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और राधा रानी के भाव में प्रकट हुए थे। अतः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन कार्य को समझने तथा उनके पद चिन्हों का अनुगमन करने के लिए हमें गोस्वामी श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट तथा दास रघुनाथ का अत्यंत गंभीरता पूर्वक अनुसरण करना चाहिए। तो हम लोग भगवान के पास जाने के लिए पहले हम लोग जो षड गोस्वामी है उनका जो क्या है पद चिन्हों का हम लोग अनुगमन करना पड़ेगा। श्री रूप गोस्वामी सभी गोस्वामी के नायक थे। रूप गोस्वामी जो षड गोस्वामी सबका नायक थे। उन्होंने हमारे कार्यकलापों का मार्ग निर्देशन करने के लिए तथा अनुसरण हेतु हमें यह श्री उपदेशामृत प्रदान किए हैं। जो उपदेशामृत है ये हमारे लिए है, सब गौड़ीय वैष्णव और सारे लोगों के लिए है, खाली वैष्णव के लिए, क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे तो हम लोग ये जीवन में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस भौतिक जगत के प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण तथा तमोगुण में लिप्त रहता है। मनुष्य को श्री रूप गोस्वामी के उपदेश पर चलते हुए अपने आप को सत्य गुण को पद तक ऊपर उठाना चाहिए। हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो हम लोग अभी जितने भी सारे हैं, कोई रज में है, कोई तम में है, कोई अभी तक सत्य गुण में नहीं है। तो भगवान इसमें बोलते हैं श्रील प्रभुपाद, हम लोग जब इनका ग्रंथ पढ़ेंगे तो हम लोग ये जो जगत की दुनिया में है उसमें से दोनों को क्रॉस करके कौन सा रजोगुण तमोगुण को क्रॉस करके हम लोग सत्वगुण में आ सकते हैं। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षक में नाम से 8 श्लोक छोड़ गए थे, उसी तरह श्री गोस्वामी ने हमें श्री उपदेशामृत प्रदान किया है, जिसमें हम शुद्ध वैष्णव बन सके। श्री चैतन्य महाप्रभु ये जो ये है शिक्षाष्टम छोड़ के गए हैं हमारे भक्तों के लिए, इसको भी जो हम लोग अनुसरण करेंगे तो भी हम लोग शुद्ध बन सकेंगे। ऐसा ही रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत और कहीं बहुत सारे ग्रंथ है जो उन्होंने रचना किए हैं, हम लोग उसको पढ़ेंगे तो वैष्णव बन सकते हैं। समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों की वश में करना है। तो सबसे मेन है हम लोग का जो इंद्रिय है हम लोग को उसको वश में करने का है। मन तथा इंद्रियों का वश में किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता।
इसी भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण तथा तमोगुण में लिप्त रहता है। कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। हम लोग कृष्ण भावनामृत में प्रगति करेंगे तो हम लोग प्रगति करना, प्रगति अनुयायी के मनोवृत्ति पर निर्भर करते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायी के पूर्ण गोस्वामी होना चाहिए। तो हम लोग पूर्ण गोस्वामी होना चाहिए। पूर्ण गोस्वामी होंगे तभी हम लोग ये भौतिक दुनिया से उभर के आ सकते हैं। वैष्णव जन सामान्यता गोस्वामी कहे जाते हैं, सामान्यता गोस्वामी कहे जाते हैं। वृंदावन में प्रत्येक मंदिर में संचालक यही पदवी से जाने जाते हैं। वृंदावन में जो सभी हैं सबको गोस्वामी बोला जाता है, क्योंकि वो सब माया से परे हैं। जो कोई कृष्ण का पूर्ण भक्त बनना चाहता है उसे गोस्वामी बनना चाहिए। जो कृष्ण को चाहता है और उनका पूर्ण भक्त बनना चाहिए तो गोस्वामी को हम लोग अनुसरण करना चाहिए। जब तक कोई अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं कर लेता तब तक वो गोस्वामी नहीं बन सकता। जब तक हमारा मन और इंद्रियों को हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम लोग गोस्वामी नहीं बन सकते। भगवान के शुद्ध भक्त बनकर जीवन में सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को उपदेशामृत नामक उपदेश का पालन करना चाहिए, जिन्हें श्री रूप गोस्वामी हमें प्रदान किए हैं। तो श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जब हम लोग ये श्री रूप गोस्वामी जो विरचित जो ये उपदेशामृत दिए हैं, इसको हम लोग सही से पालन करेंगे और उनका उपदेश को पालन करेंगे तो हम लोग भी गोस्वामी के तक बन सकते हैं। उन्होंने अनेक अन्य पुस्तक भी लिखे हैं, यथा भक्ति रसामृत सिंधु, विदर्भ माधव तथा ललित माधव। लेकिन श्री उपदेशामृत नए भक्तों के लिए प्रारंभिक उपदेश है। मनुष्य को इन उपदेश को पालन अत्यंत दृढ़ता के से करना चाहिए, तभी अपना जीवन सफल बनाने अधिक सुगम होगा। हरे कृष्ण। तो आज के लिए इतना ही। कुछ मेरे से त्रुटि हुआ तो मेरे को क्षमा करना और आशीर्वाद दीजिए। कुछ मैं नेक्स्ट